Good morning, students. This is KK Bhatt here. Dear friends, once again I am here with the chapter of the little girls from class 9th English Behave. Dear students, in the previous video I have explained the summary of this lesson as well as up to 6. It means I have explained page number 34. Today in this sequence I am going to explain page number 35, number 7. I hope you have a book. If you have no book, you can read it through the screen. Now see, you are crying too much to explain. Dear students, you know well that her father's birthday gift, Kezia just found out many number of papers and tear them into the piece and put them into her cushions and save from four sides. Those papers are very important for her father because her father just prepared a speech for court. When when everyone searched that paper, but no one found that, then her mother went to KGR rooms to inquiry about those papers. When she asked the question about that paper, those papers, Kezia easily agreed and said that yes, she collected those papers and tear them into small pieces and put them in the cushion. Hearing these words, her mother just started crying and just dragged out her into the drawing room where her father was moving here and there. When she came in that place, her father just looked her angrily and said to her mother to take these girls into that room. I will talk her later. As her mother left her in that room, then after she heard the seven, crying too much to explain. Kezia tried to explain to her father that she was not knowingly tear those pages, but no one was there to hear her. She lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. She lay in the darkened room, shadow room, and she watched the evening light which create a sad atmosphere around her. जो इवनिंग लाइट थी उसके चारों तरफ एक सैड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे. Then father came into the room. Then what happened? Her father came into the room with a ruler in his hand. There was a ruler in his hand. Her father came into the room with a ruler that is in her hand. That is in his hand. जो उनके हाथ में रूलर था उसको लेकर के वो आते हैं. I am going to beat you for this, he said. उसके फादर ने कहा कि he was going to beat her. वो उसको मारने जा रहे हैं for that mistake. उस गलती के लिए. उस गलती के लिए जो उसने किया है उसको पनिशमेंट अवश्य मिलेगा. That is why he declared to beat her. वो डिक्लेयर करते हैं उसको मारने के लिए. Oh no no, she screamed, she cried. वो बच्ची चिल्ला करके चीखती है, कहती है oh no no father, no don't beat me. वो कहती है मुझे मत मारो. हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ. और ये कहते हुए वो जो है जो बेड क्लॉथ है, जो चादर जिसको आप बोलते हो, उसके अंदर वो जाके छुप जाती है. ये पुल दे में साइड वो सारे चित्र को फिर से एक साइड कर लेता है और ऑर्डर देता है उसको सिट अ बैड जॉब. वो बच्ची को ऑर्डर देता है टू सिट अ बैड जॉब.
and hold out means extend. कहता है hold out your hand, extend your hand. उसे कहता है extend your hand, अपने हाथ raise your hand, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ. You must be taught once. कहता है कि you must be taught once. एक बार तुम्हें समझाया जा चुका है. Once and for all. अब एक बार कई बार तुम्हें समझाया जा चुका है कि not to touch what does not belong to you. यानी उन चीजों को मत छुओ जो तुमसे संबंधित नहीं है, जो तुमसे बिलोंग नहीं करती है, जो तुमको कोरिलेट नहीं करती हैं, ऐसी चीजों को तुम मत छुओ. And hold out your hand. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. यानी ऐसी चीजों को तुम मत छुओ जो तुमसे बिलोंग नहीं करते हैं. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. बच्ची कहती है बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. बच्ची कहती है लेकिन ये जो गिफ्ट हमने बनाया है ये आपका बर्थडे गिफ्ट है, ये आपकी एक सरप्राइज गिफ्ट मैंने आपके बर्थडे के लिए तैयार किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. Came down to the ruler on her little pink paw. Down came the ruler. वो क्या करता है, रूलर को नीचे करता है और उसके छोटे पिंक हथेली पर उसको मारता है, उसे उसको स्ट्राइक करता है, उसको प्रहार करता है, उसको मारता है और बच्ची चिल्लाती है और वो he want to explain everything but no one was there to hear. इसीलिए कहा गया है कि जब कोई बच्चा बदमाशी करता है, कोई गलती हो जाती है तो बच्चे इनोसेंस होते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है. ठीक है, तो उनको इनके इनोसेंस को देखते हुए हमें क्रूएलिटी से व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें उनको लविंग केयर करना चाहिए, समझाना चाहिए. ये जो होता है बेटर ऑप्शन होता है देन बीटिंग, मारने की अपेक्षा. क्योंकि जो मार होती है वो बच्चों के मन और मस्तिष्क पर बैठ जाती है, लंबे समय तक बच्चा उसको याद करता है और वो परेशान रहता है. इसलिए जब कभी भी कोई छोटा बच्चा गलती करे तो बेटर नॉट टू बीट हर. अच्छा है कि उसको आप मारिए मत, उसको समझाइए ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसका हाई होता है उसे समझ जाएगा तो कभी भी ऐसी गलती वो नहीं करता. अब आगे देखते हैं नंबर 8 में क्या है. नंबर 8 में कह रहे हैं कि आवर्स लैंड यानी घंटों बाद, यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम कह सकते हो. व्हेन ग्रैंडमदर had raped her in a साल. जब उसकी ग्रैंडमदर जो ग्रैनी हैं, जो ग्रैंडमदर उसके हैं, जो ग्रैनी हैं, उसको साल में रैप कर देती है, लपेट लेती है. जैसे आप जानते हो छोटे जो बच्चे होते हैं, अक्सर कोई माँ या दादी छोटे बच्चों को उठाती है तो कई बच्चों को साड़ी से ढक लेती है, अगर साल है तो साल से ढक लेती है. ऐसे उसकी जो दादी माँ है वो उस बच्ची को साल से ढक लेती है. Grandmother had raped her in a shawl and rocked her in the rocking chair and swing her in the swinging chair. उसको एक swinging chair पर swing करके झुलाते हैं. The child clung. Clung का मतलब होता है बेटा catch. ठीक है, तो clung the, उसकी दादी क्या करती है, होल्ड कर लेते हैं, कैच कर लेती है. The child hold. Child clung means the child hold. बच्चा उनको पकड़ लेता है टू हर शॉर्ट बॉडी, जो उसकी शॉर्ट बॉडी है उसको वो पकड़ के चिपक जाता है. Because he realized the affection from her mother, that is why to remove her pain, her grief, he just cut her mother's bodies. What did God make fathers for? She wrote. She wrote. और होती है सुखते हुए कहती है कि दादी माँ भगवान ने फादर को किस लिए बनाया है. Here is a clean hanky. तब उसकी माँ उसको कहती है, दादी माँ उसको कहती है, कहती बेटा here is a clean hanky. यार एक छोटे साफ रुमाल है. Blow your nose, clean your nose. Blow your nose, clean your nose. वो कहते हैं अपने नाक को साफ करो. Go to sleep. सोने चले जाओ. Bed. You will forget all about it in the morning. कहती हैं कि बेटा आप सो जाओ, सुबह सारी बातें आप भूल जाओगे, सारे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे. वो कहती है आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर. वो कहती है कि मैंने फादर को एक्सप्लेन करना चाहा बट ही वाज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. कहती है कि वो इतना अपसेट है, इतना परेशान है कि वो किसी की वो बातों को सुन नहीं सकता.
तो इस तरह से क्या वो अपसेट टू लिसन टू नाइट, वो इतना परेशान है कि उन बातों को वो सुन नहीं सकता। मतलब चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्चे कभी भूलते नहीं, वो बच्चा कभी भूला नहीं जो इस तरह से बैडली उसके फादर ने उसके साथ व्यवहार किया था, उसको पिटाई की थी, उसको बच्चा कभी भूला नहीं। नेक्स्ट टाइम सीसा हिम, दूसरी बार जब वो उसको देखती हैं, सी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक, वो अचानक क्या करते हैं, अपने दोनों बाहों को पीछे कर लेती है, एंड रेड कलरफुली इनटू हर, उसका चेहरा लाल हो जाता है ड्यू टू एंग्रीनेस, ड्यू टू फियर, आप फियर भी कह सकते हो, एंग्रीनेस भी कह सकते हो। तो डर से उसका चेहरा जो है वो लाल हो जाता है, फादर को देखते ही वो दोनों हाथों को पीछे कर लेती है। आई होप अब आपको नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। नाउ सी नंबर 9। बेटा नंबर 9 में आप देखो दिया है मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड कौन है? उसके पड़ोसी हैं, जो उसके पड़ोस में रहते हैं, जो नेबर उसके हैं। वो बच्ची जो है चारदीवारी से देखती है मिस्टर मैकडोनाल्ड को, और पाती है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड के 5 चिल्ड्रन हैं, और पांचों बच्चे उनके साथ कैसे खेल रहे हैं, जैसा कि आप पीछे पेज नंबर 36 में आप पेज में दिखाया गया आप देख सकते हैं। और बताते हैं कि जो माँ एक छोटी सी बच्ची है वो उसके कंधे पर बैठ जाती है, दो बच्चे जो है उनके कोट को पकड़ लेते हैं और इसे छुआ टैगिंग मतलब छुआछूत का खेल खेलते हैं, एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास करते हैं। नाउ से ये 9, अब 9 आप देखोगे क्या है, मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मतलब मैकडोनाल्ड लिव नेट मतलब मैकडोनाल्ड वाज हर नेबर आप कह सकते हो। दे हैड 5 चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन? दे हैव 5 चिल्ड्रन, यानी मैकडोनाल्ड के पास कितने बच्चे हैं? 5 चिल्ड्रन हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, वो चारदीवारी के गैप से देखती है। द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग, छोटी बच्ची देखती है कि कैसे सारे बच्चे जो हैं वो टैग गेम खेल रहे हैं, और छुआ छुई का खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे को दौड़ा के पकड़ने का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, वही कह रहे हैं कि टैग इन द इवनिंग, शाम को देखती है कि सारे जो बच्चे हैं वो इकट्ठे हैं, अपने फादर के साथ खेल रहे हैं। और आगे देखो क्या होता है, माओ आन हिज सोल्जर्स, माओ जो है उसकी छोटी लड़की है जो उसके कंधे पर है। फादर विद द बेबी, मतलब फादर जो है एक बच्चे के छोटे से बच्चे के साथ है, माओ जो उनके कंधे पर बैठी हुई, जैसा कि पेज नंबर 36 में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो उस पे बैठी हुई है। और टू लिटिल गर्ल्स, और दो जो छोटी लड़कियां हैं, हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, दो छोटी लड़कियां उनके कोट पॉकेट को पकड़ी हुई हैं। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड, जो फ्लावर बेड्स है, जो क्यारी बनी है उसके चारों तरफ बच्चे जो है क्या करते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, hanging on his coat, देखो, two little girls hanging on his coat pockets ran round and round the villa, यानी आप समझ गए कि जो छोटे बच्चे हैं वो फादर की कोट को पकड़ करके गोल गोल दौड़ते हैं, जैसा कि आप पेज नंबर 46 में आप देख सकते हो। ये चार दीवारी है जहाँ से बच्चे देख रही है, और ये सारे बच्चे हैं जो उनके साथ खेल रहे हैं। आगे देखो, two little girls hanging on to his coat pocket ran round and round the flower bed, यानी फ्लावर बेड के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। शेकिंग विथ लाफ्टर, हंस रहे हैं, हंस के साथ वो सब दौड़ रहे हैं, शेक कर रहे हैं। Once she saw the boys turn to the hose on him, एक बार वो देखती है कि लड़के जो हैं वो दौड़ करके होज पाइप को उठा लेते हैं, वाटर होज मीन्स वाटर पाइप को उठा लेते हैं, एंड इट ट्राई टू कैच देम, और इस तरह से जो एम्प्लॉय हैं वो दौड़ करके उसको पकड़ने जाते हैं। तो एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, ठीक है, और हमेशा हर टाइम हंस रहे हैं, हर टाइम एंजॉय कर रहे हैं। तो वो देखते हैं जो बच्चे हैं वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, वो बच्चे जो हैं वो दौड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसको देख करके उसके मन में थोड़ा ग्लान होती है, दुख होता है, वो सोचती है कि भाई काश मेरे फादर भी ऐसे होते और वो भी मेरे साथ ऐसे खेलते। But she said that her father is just busy in work, and when he returned from the office,
जस्ट स्टार्टेड एंड क्राइंग एंड मेक ए लॉट ऑफ नॉइस। इस तरह से बच्ची जो होती है थोड़ा सा डिप्रेस होती है, परेशान होती है। Then it was the decide. Then it was a decide. There were different sort of मतलब वो सोचती है वो नहीं नहीं सारे फादर मेरे जैसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे ही फादर होते हैं जो मेरे फादर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। अचानक क्या होता है उसकी माँ जो है बीमार पड़ जाती है। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। यानी उसकी माँ और उसकी ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल चली जाते हैं। The little girl was left alone in the house with Alice. और छोटी जो बच्ची है उसको घर में रोक दिया जाता है तो एलिस के साथ कुक रहने के लिए। द कुक जो उसके घर में खाना पकाती है। That was all right in the day. डे टाइम में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे नाइट होती है, जैसे रात टाइम होती है, वैसे उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब देखो क्या है तो बट बट वाइल एलिस But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly after. जब एलिस जो है वो उसको केजिया को अपने बेड पर रखती है, उसको बेड पे सुलाती है, अचानक केजिया क्या होती है, डर जाती है, भयभीत हो जाती है। नाउ सी नंबर 10, What will I do if I have a nightmare? वो बच्ची कहती है कि मान लो अगर मुझे सपने आएंगे नाइटमेयर के तो मैं क्या करूँगी? She asked, I often have nightmares and then ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड। अक्सर मुझे क्या होता है रात में सपने आते हैं, तब ग्रैनी मैम जो है वो उठ करके आती हैं, उसकी जो ग्रैंड मदर हैं और उसको ले करके उसके बेडरूम में चले जाते हैं। तो ग्रैनी टेक्स हिम इनटू हर बेड, उसको अपने रूम में लेके चले जाते हैं। आई कॉन्ट से इन द डार्क, ठीक है, आई कैन नॉट से इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परिंग। तो आई कैन से इन द डार्क में अंधेरे में कोई बात नहीं कर सकता, सब कुछ वेस्पर ही है, सब कुछ साथ के साथ हम लोग के पास आ जाते हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, और बोलते हैं कि बेटा आप जाओ सो जाओ, ठीक है। एंड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट योर स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पापा। तो कहती हैं कि भाई सब चिल्लाओ ना, अपने फादर को जगाओ ना। इस तरह से जो है ये लेसन आपका एक जो लेसन का जो वीडियो लेक्चर आपका है वो 20 मिनट का है, वो आपका लगभग समाप्त हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह से ये लेसन कल आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, तो पढ़ा भी देंगे और कल आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से हम दूसरी चीज़ पे टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स टू ज्वाइन मी एंड वॉच माय वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।